Don't give the fees, but teach them how to catch the fish. That's more important. This session is started with the aim of teaching you how to catch the fish, how to get the right fish, not the unwanted one. When coming into this session, I want to really appreciate Dr. Ruchi, your professor. She has chosen the right people. There is a saying, if you assign the job to the right person, the 50% job is done. Rest they will take care of it. That's what I said, that I really appreciate her for finding the right person. There are 170 industries are associated with this Roy Industrial Association. And Mr. Rakesh is the chairman for this one, president of this particular association. I have got many opportunities to talk to him one-to-one. I could see the vision he has. It's really motivating. It is really encouraging. It sets the path. Yes, this is the right direction that he should follow. I have told my students in the CAE also, I am not just only going to guide them, but also generate some revenue so that they can start their work. The university will give the seed money, but in addition to that, we will find out the right industry partners. They have so many ideas. I told them that your CAE should not stop only with hackathon. There is more than that. We want to see that you start with a startup. We will register. The university will support. We have advocate. I have already asked Dr. Ahmed to discuss with the advocate, and then we start the registration process. Now, the next target is, as a team, that you come up with a proposal. When I talk about CIIE, it's not only the existing students of CIIE. It can expand to any level. Okay, I want to see the expansion. This expansion should see that you achieve the goal. You come up with the right proposal. That initial proposal will be reviewed by our own faculty members. They will screen the proposals. The next stage will be reviewed by the industry experts. That's what I was talking to Mr. Rakesh Chakravarti one day, very recently, that we have our students, they have so many ideas, but we want them to be seen. We want them to be screened. We want them to be reviewed. We need your support. And immediately agreed. That's the beauty of Mr. Rakesh Chakravarti. And we have the AGMA center within the campus. Okay? मैंने IIT से उसको चुरा के लेके आ गया था. IIT has so much. We don't have much. Please come. What you need, we will provide. I did that. Okay. Now, how you are going to make use of this AGMA sitting next to me, Mr. Dinesh Bedpatak ji. He's the CEO, the topmost person. Okay, he is here. And here, right side, the president, left side is the CEO. Whom else you want? Okay? And the students, others, I don't know much that you know about the CIE or not, but I want you to be with them, talk to those students and how much interest they have it. If you have that interest in the industry, to have startup, to be entrepreneur, that you want to give jobs to others instead of job seeking, I want you to be job provider. That is the purpose of giving this talk. And long back, we are in cooperation with so we are in touch with this MSMEs. And I always
whenever I get opportunities, I never leave any opportunities. My first thought process goes for the students. Can I do something for the students? Now, for what purpose I am sitting here as a registrar, dean academics, dean research, and director? So what? I am a professor of 2 departments, 3 departments in fact. For what? Why I have so many titles if I cannot help one student? Whenever I get the opportunity, I see to that one. I talk to anybody, I request anybody on your behalf. That's the reason that I am here. It's not out of compulsion. Nobody has asked me. It's I do it from my heart. Students are the first priority. I cancel many things. I sit here. I come on holidays. This Sunday also I was telling the students in the CAE, I'm here on Saturdays, Sundays. You can show up if you have any programs. If you want to meet me, discuss with me, be here on Saturdays, Sundays, I'll be there with you. Still I keep that promise. I cancel so many things. Many prefixed meetings are cancelled. I said cancel it, doesn't matter. If I could help my students. Okay, that is the purpose that we have started this entrepreneur talk. Okay, you will be hearing from the horse's mouth, the topmost people. We will arrange even more people. They will be also coming here often to meet you. Okay, I was talking about the MSME. Okay, what the discussion took place was that one, they will generate some money. The equal amount will be put by the university. I promised, yes, we will do it. Now again, I will take that discussion separately with Mr. Rakesh. That with his support, we will generate some money. With the support of Atma, that we will generate some money. University will put 50%. If they generate 10 lakhs, university will give 10 lakhs. So total is how much? 20 lakhs. I'm just giving an example. That will be invested in CIIE. Is it okay? I want to see that the students from any department, not necessarily from the CSE, any department, they can be part of the CIIE, they get benefit. Think, day and night, have dreams, not in the night. The dream should not allow you to sleep. Okay, that's sort of dream you have. And tomorrow you will be like, who are sitting, left and right to me. In fact, with their approval, I can say that above them. This is what my desire, I can say that their desire. Okay, I could see that entrepreneur sitting in front of me. Remember me at that time. Okay, with that, thank you so much, Dr. Ruchi, for arranging this excellent event, and thanks to Mr. Rakesh ji as well as Dinesh ji. Okay, thank you all. Listen to them, have proper discussion with them. Okay, as usual, I will not be able to sit through the meeting. I will miss this meeting, but I will get the update from Dr. Ruchi. So with that few words, thank you so much. I just ask you that regarding India's GDP or world's GDP, can you tell me which are the top 2 countries having the most GDP in the world till 1780? 1700 साल तक, मतलब अभी 2024 है ना, 1700 साल में कौन से 2 कंट्री का जीडीपी टर्नओवर बोलो ज्यादा था, ऐसा उन्होंने पूछा। ओके, नंबर 1 पे कौन था? इंडिया। कितना था इंडिया का परसेंटेज जीडीपी में? वर्ल्ड जीडीपी में 25%। तो वर्ल्ड जीडीपी का अभी कितना है इंडिया का जीडीपी परसेंटेज में? आपको आता है तो बोलो, ऐसा खुजाने का धंधा मत करो। So it is very less. Compared to that, it is nothing. Close to that, right? इतना सारा हमारा जीडीपी जब हमने इतने 2000 साल जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं 2500 साल के,
उसमें से 2007 से भी ज्यादा इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड पे नंबर 1 पे रहा। क्यों रहा? Please use mic. तुम्हारे सामने ये दिया है Just switch on the mic and ना, speak. उसका बटन दबाने के बाद रेड चलता है, उसके बाद अपने मुंह से आवाज निकालो, सुनाई देगी। And maybe you're good enough to say, please. So at that time, India was having most of the resources, like most of the resources mainly spices, like it was oil and India. It was one of the major abundant resources, and like gold, diamonds. India like one of the huge diamond like Rio diamonds. It was extracted from India itself. So at that time, India was having most of the resources. That's the So one thing is resources, then answer one more thing. yeah. So the pathway, sir, like that Caribbean path, Indian Ocean path, it was one of the great impactful path because England used to take a huge part from the Himalayas and itself, like it was a great direction. England was after 1700. Yes, sir. उससे पहले की बात कर रहे हैं। Sir, I think like जो भी invader होता था sir, they used to take the path from the Himalayas itself, sir. सर उस टाइम पे वो वाला पाथ नहीं डिस्कवर हुआ था सर, बिकॉज उससे पहले सर वो लोग दो ही पाथ लेते थे सर, लाइक फ्रॉम हिमालयास एंड दे यूज्ड टू ट्रैवल ऑन। पर जब सी रूट डिस्कवर हुआ काफी इम्पैक्टफुल रास्ता था सर, मतलब कि और काफी कम एक्सीडेंट्स होते थे, काफी कम डेंजरस रास्ता माना गया उसको, और वो भी काफी अच्छा रास्ता हुआ, काफी लाइक स्पाइसेस हम आपने कहा कब से एक्सपोर्ट करता है इंडिया? सर 1855 BC। We are exporting since first century. केरला से सी रूट से ही होते थे। जी सर। फर्स्ट सेंचुरी से। आप कभी केरल जाएंगे तो वहाँ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जी सर। तो हमारे कनेक्शन जो है बहुत पहले से है, और अभी जो वर्ल्ड की जो पुरानी चर्चेज हैं वो भी कुछ केरला में हैं। ठीक है, तो उस टाइम जब ईसा मसीह आए तो हम फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो तब भी हमारे सी कनेक्शंस थे। India has always been connected by sea and by road. You can say both ways. Not only the Himalayas. Himalayas से सिर्फ चाइना या मंगोलिया इधर से आते थे या मिडिल ईस्ट से आते थे, बाकी सब हम सी से कनेक्टेड बहुत पहले से। जी, anyone else? कि जीडीपी हमारी सबसे ज्यादा क्यों थी? इंडिया वर्ल्ड के अंदर टॉप लीडर क्यों था? इंडिया टॉप लीडर इसलिए था क्योंकि यहाँ हमारे सारे लोग एंटरप्रेन्योर होते थे। यहाँ पे नौकरी का रिवाज नहीं था। जितनी भी नौकरी होती थी या सर्विसेज हम कहते हैं, वो सिर्फ राजा के पास होती थी, जो कुछ फाइनेंस वाले और कुछ मिलिट्री वालों को देते थे, पुलिस को देते थे, बाकी सब के सब एंटरप्रेन्योर होते थे। कभी भी कोई किसी को नौकरी पे नहीं रखता था। अगर आप अभी भी गांव से आप जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बताऊं, विलेजेस में अभी भी आप अगर गेहूं कटाई होनी है तो गेहूं कटाई को वेट के हिसाब से पेमेंट की जाती है कि इसने इतने बंडल गेहूं काटी है तो इसको इतनी पेमेंट करो, इतना राइस काटा है तो इतनी पेमेंट करो, इतनी कपास चुनी है तो इतने पैसे दो। आज भी वही सिस्टम गाँव के अंदर एग्जिस्ट करता है। गाँव के अंदर अगर ये जो सर्विसेज का सिस्टम जो है ये हमारे यहाँ अंग्रेज ले गया है, ब्रिटिशर्स। इससे पहले हिंदुस्तान में ऐसी कोई कल्चर नहीं थी। आप सोच के देखें, अभी भी अगर आपसे कोई कहे कि ये पर्टिकुलर काम है, मान लीजिए एक हमने ऐसे लिखना है, ये ऐसे आप एक दिन में लिखोगे या आपका फुल डे वर्क है तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से आप 15 मिनट में लिख के चले जाओगे। सोच के देखो, क्या आप उसके लिए सारा दिन लगाओगे ऐसे लिखने के लिए? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि we are hard workers and we know our capabilities। तो हमारे अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना आज भी जिंदा है। हम उसको किसी एक कोने में दबा के हम रख देते हैं, पर एंटरप्रेन्योरशिप गई कहीं नहीं है। आप किसी से भी बात करें, आप घर में आपके वर्कर्स हैं, कोई भी है, आप जिससे काम कराना हो, जब हम बात करते हैं ना, भाई ये सामान ऊपर उठा दो, ऊपर आप रहते हैं किसी फ्लोर पे, तो आप बोलेंगे कितने पैसे लोगे? ऊपर उठा दो, फटाफट उठा के चला जाएगा। यही आप अपने सर्वेंट को लगा दो तो वो सारा दिन वही करता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें आदत एंटरप्रेन्योरशिप की है। ये जो सर्विसेज जो हमारे दिमाग में बार बार डाला गया, ये नौकरियां अच्छी हैं, ये बढ़िया है, ये सब उन्हीं ने हमारे दिमाग में डाला। मेरे पास अभी एक जर्मन आए हुए थे, हम बैठे हुए बात कर रहे थे उसकी 4 महीने पहले, तो मैंने कहा अभी आपकी स्टेज क्या है?
बोले अभी तो सारी जो नौकरियां हैं वो तो सारे एशियन कंट्रीज ले गई, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। मैं क्या रीजन क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी कोई रिटायर हो रहा है तो अपने बेटे को लेके आया, उसने एग्जाम्पल दी कि मेरे यहाँ रिटायर हो रहा था तो अपने बेटे को लेके आया। उसने कहा बेटे ने कि जितनी सैलरी मेरे पापा लेते सैलरी मुझे चाहिए उससे 50% ज्यादा, और वर्किंग चाहिए मुझे 4.5 days। अभी हम 5 दिन की बात करते हैं, यूरोप में 4 दिन की कल्चर आ गई है। 4 दिन काम करते हैं, 5वें दिन लंच तक बैठते हैं, सिर्फ गप्पे मारते हैं, आपस में रिलेशन बनाते हैं और चले जाते हैं। इसको भी वर्क काउंट होता है क्योंकि ऑफिस में आ गए। तो इतनी कम कल्चर होती जा रही है। क्या आपसे कहा जाए 4 दिन काम करो तो अच्छा लगता है थोड़े दिन, पर हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आपको कहा जाए कि 4 दिन काम करने का आपको 1 लाख मिलेगा, 5 दिन करोगे तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे महीने के, तो आप कितने दिन करोगे? 5 days। और 6 दिन करने के 3 लाख मिले तो कितने? 6 days। और 7 दिन काम करो तो 10 लाख मिलेंगे, तो क्या करोगे? 8 दिन काम करेंगे। 7 दिन में अगर करना हो 10 लाख मिले तो क्या करोगे? हाँ जी, करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप में से एक भी एंटरप्रेन्योर बनने के लायक नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इट इज 24/7। जिस दिन आप ये ठान लोगे कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, उस दिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास रेस्ट करने के लिए किसी चीज के लिए कोई वक्त नहीं है। तभी आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे और कामयाब होंगे। अगर आप ये सोचते रह जाएंगे कि मैंने 5 दिन काम करना है, 6 दिन करना है, तो बेटर आप जॉब करें, वो 2-3 लाख में सेटिस्फाई रहे, 10 लाख की बात ना सोचें। I would like to add something. Please. Sorry, I'll introduce myself. इसमें No, I can speak loudly. I think I am audible to everyone. Fine, yeah. अरे नहीं बोल रहा। नहीं मत बोलो सर। See, a very small thing I would like to add. हमारा ब्रेन जब काम करता है ना, हम सोचते हैं 7 दिन काम करने का मतलब क्या है कि जस्ट वर्किंग एवरी टाइम। क्या होता है, जॉब में आप जाते हो, आपसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट की जाती है, करेक्ट? सो यू आर गिवन अ नंबर ऑफ टास्क, वो खत्म होता है तो आपको नेक्स्ट टास्क असाइन किया जाता है, करेक्ट? सो द डिफरेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप इज यू हैव टू लिव लाइफ व्हाइल वर्किंग। सो आई हैव बीन इन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर लास्ट 5 years नाउ। सो द डिफरेंस इज कि हम 7 दिन काम करते हैं, बट द पर्सनल लाइफ इज बैलेंस। So it's not like कि अगर आप ऑफिस में बैठे हो 8 घंटे, so the difference work life balance जो बहुत ज़्यादा आजकल दिमाग में डाला जाता है, जिसकी वजह से I've studied in Europe, I've worked in Europe as well। वहाँ डिफरेंस क्या है कल्चर का कि वहाँ दिमाग में बिठाया जाता है कि 6 बजे के बाद अपना दिमाग ऑफ कर दो, राइट? एंड दैट इज नॉट हाउ वी फंक्शन। मतलब आप जनरली कंपेयर भी करेंगे ना, खुद भी एज स्टूडेंट्स भी, इफ यू कंपेयर योरसेल्फ टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हु आर देयर, so our intellect is very different because हमने core mathematics and everything that is blended into us, right? तो logic में, reasoning में we are naturally better with different people। तो इंडिया और चाइना के लोग क्यों बाहर जाके सेटल हो रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है यार वहाँ हम जितना काम 3 दिन में कर लेते हैं ना, वो लोग 3 महीने में भी कई बार नहीं कर पाते, honestly speaking, and especially with the that things that involve logic। तो जहाँ पे 7 दिन काम करने की बात आ रही है ना, वहां पे इस चीज से डरना नहीं चाहिए कि मंडे टू संडे काम करना पड़ेगा, मंडे टू संडे कॉल अटेंड करने पड़ेंगे। यू हैव टू मेक योर ब्रेन वर्क इन अ डायरेक्शन कि एंटरप्रेन्योरशिप मींस यू आर अवेलेबल एवरी टाइम फॉर योर वर्क व्हेन इट डिमांड्स। सो इनिशियली तो सबको काम करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे अब कितने सारे स्टार्टअप्स आते हैं, शार्क टैंक में सब लोग देखते होंगे ऑब्वियसली, राइट? सो व्हेन यू हैव टू ऐड अ स्मॉल थिंग टू दैट कि पहले 2-3 साल, 5 साल, कई बार 10 साल भी हसल रहता है, लेकिन उन 10 साल के बाद व्हेन यू हैव अ डेडिकेटेड टीम वर्किंग ऑन एवरीथिंग, then they are the ones providing the service, you are the one providing and running the brains। ठीक है ना, खुद मैथमेटिक्स करना पड़ेगा उसके बाद, ना आपको खुद फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे, ना आपको ऑपरेशंस रन करने, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट रनिंग अ बिजनेस। सो क्योंकि आप कोर पहले कर चुके होगे, तो दैट विल मेक द होल डिफरेंस। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि द डिफरेंस इज कि जो 4 दिन में 1 लाख मिल रहा है ना, मे बी शायद मैं वो एक्सेप्ट कर लूं, बट एज अ कंसल्टेंट। See, so everybody knows consultant is another job. So when you are an entrepreneur, you become a natural consultant to everybody who wants to start a similar work. You should keep that in back of your mind. और अगर आप जॉब में ये चीज करोगे तो that's called moonlighting. Everybody knows that. Just wanted to add that. चलिए, तो अभी यंग है आप, तो ये भी यंग है बच्चे, तो आप आपस में बात करोगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं अपनी बात फिर वैसे शुरू करता हूँ कि अगर आप लोग अपने आप को तैयार रखोगे 24/7, तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और 24/7 की एक परिभाषा आपको स्मिथ ने समझा दी।
करेक्ट? तो अब पहला स्टेप हमारा है कि हमने अपने आप को तैयार किया कि हमने एंटरप्रेन्योर बनना है। फिर एंटरप्रेन्योर बनने के बाद हमारी जर्नी शुरू हुई कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी कैसे है, क्या करना है, विच लाइन टू डिसाइड वेयर वी हैव टू एंटर। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आपका अपना पैशन है किसी चीज के लिए, मेक योर पैशन योर ड्रीम। अगर आप उसी पैशन को अपना ड्रीम बना के उसको फॉलो करते हो तो आपको लगेगा आप काम कर ही नहीं रहे। आप में से देखिए, अगर किसी बच्चे को कोई स्पोर्ट्स की आदत हो, इवन मैं कहता हूँ खाली आप वीडियो गेम खेलने की किसी को आदत हो, तो अगर उसको कहा जाए 24 घंटे खेलता रहेगा। अगर आप उस चीज को, अपने ड्रीम को अपना पैशन बना लेते हो, तो दैट इज ऑल्सो वन गुड साइन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंडली, जब आपको रिसर्च करनी है, सेकेंड होता है कि आपको रिसर्च करनी है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो जब डायरेक्शन चूज करनी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो आपके पास दो फील्ड है, एक सर्विसेज का और एक मैन्युफैक्चरिंग का। तीसरा भी होता है ट्रेडिंग। ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं, आप अपने पास लिस्ट बना सकते हैं, बट बेसिकली हम जिसको डिवाइड करते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, एक होता है आपका सर्विसेज। आप सर्विसेज में कौन जा सकता है? सर्विसेज में फिर वही है कि आप सर्विसेज जिसको भी दे रहे हैं, यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम। मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें भी सिमिलर, यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम। हाँ, ट्रेडिंग ऐसी है जिसमें कि आप सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक काम खत्म कर सकते हैं। ट्रेडिंग 24, तो ट्रेडिंग भी 24 घंटे हो गई है। ई कॉमर्स की बात करें तो दैट इज आल्सो 24 आवर्स। तो इट मींस कि जब आप अपने आप को अच्छे से पहले इवैल्यूएट करें कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या आपको जॉब करनी है। जब आप डिसाइड कर ले, जो जेन्युइनली जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जैसे पहले पुरानी बात करते थे डॉक्टर्स की, कि डॉक्टर बनना है तो आप ये तैयार रहोगे, कभी भी इमरजेंसी रात को आएगी, उनके जाना पड़ेगा। आज एंटरप्रेन्योरशिप भी वैसी ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, पर जैसे इसमें देखा कि आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में आपको इनिशियल जो ईयर्स होती है उसमें मेहनत ज्यादा होती है। उसके बाद जैसे ही आपकी टीम बिल्ड होती है, आप धीरे धीरे अपने आप को अलग करते रहते हैं। तो आपको फर्स्ट फेज में एंटरप्रेन्योरशिप में 24/7 तैयार होना है। सेकंड फेज जो आपका आएगा, जब आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, जिसको अगर सर्विसेज है तो इट विल टेक 3 to 5 years, अगर मैन्युफैक्चरिंग है इट विल टेक अप टू 10 years। और जब आपके वो 10 साल हो गए, आप मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को परिपक्व कर लेते हैं, तो फिर सारी टीम्स, मैनेजर्स अलग अलग सब संभालेंगे। आप लोगों को सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। ऑपरेशंस में कोई भी जो सीईओ है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको दिन में 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं देनी है। कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे इवन फैक्ट्री के हमारे मैनेजर से भी मीटिंग रखनी है, इंटरनल फैक्ट्री के प्रोसेसेस या जो भी आप सर्विसेज में हैं, इंटरनल प्रोसेसेस में जितनी हमारी टीम है, उसके लिए मैक्सिमम अराउंड इज 3 hours। अगर आपको वाकई आगे बढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं देना। 3 घंटे उनको देने हैं, बाकी समय आपको बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ देखना है और लोगों से मिलना है। जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा, उतनी तेजी से हम आगे बढ़ पाएंगे। ना आपका होने तो मैं लगातार बात में सर ने मुझसे कहा था कि मेरे को सिर्फ 3 मिनट लेने में बाद में लूंगा। हाँ, आखिरी में आपके बात। तो इस तरीके से हमने अपने आप को तैयार करना है। अब मान लीजिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने एंटरप्रेन्योर बनना है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? ये तो आपने डिसाइड कर लिया, फाइंड एन आइडिया। फाइंड एन आइडिया, मार्केट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, इनोवेशन। मेनली ये 2 ही तरीके हैं जो हमें एंटरप्रेन्योर बनने के बाद डिसाइड करते हैं। अगर हमें इनोवेशन की तरफ जाना है तो वो स्टार्टअप्स की एक पूरी लाइन अलग हो जाती है, और सेकंड मार्केट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च। जो भी प्रोडक्ट हम देख रहे हैं जिसमें हमें लगता है इंटरेस्ट है, उसके अंदर मार्केट रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अगर मार्केट रिसर्च के बिना बनेंगे, तो आज इवन स्टार्टअप आइडियाज को भी अगर आप देखें तो आपको अंदाजा है कितने स्टार्टअप कामयाब होते हैं इंडिया में परसेंटेज वाइज? इतने कम तो नहीं, थोड़ा बढ़ा नियरली 7%। ठीक है, 93% स्टार्टअप्स हमारे नहीं चल पा रहे हैं। उसका एक रीजन है कि बच्चे शुरू में ही कॉलेज से ही जो आइडियाज लेते हैं, उसी के अंदर ही स्टार्टअप शुरू करने लग जाते हैं।
उसमें मार्केट एनालिसिस आपने बहुत अच्छा, किसने बताया था? मार्केट था, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। मार्केट एनालिसिस जो है ना, मार्केट रिसर्च, ये बहुत जरूरी है। और कॉलेज की स्टेज पे ये नहीं होता। जब हम कोई इनोवेट कर रहे होते हैं उस टाइम हम पहले मार्केट रिसर्च में नहीं जाते, हम पहले इनोवेट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे स्टार्टअप के आइडियाज ज्यादा नहीं चलते। तो मेरी आपको सजेशन ये रहेगी कि आप लोग जब भी जो भी आइडियाज आपके दिमाग में हो उनको अपने साथ रखें और साथ साथ करते रहें, पर कम से कम 2 से 3 साल तक आप जॉब जरूर करें और कोशिश करें जिस एरिया के अंदर आपने अपना स्टार्टअप खोलने की सोची है, अगर उस एरिया में जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर ना मिल पाए तो एमएसएमई से के साथ काम करें। तो पहली स्टेज तो हमारी हो गई कि मार्केट एनालिसिस करना है। उसके बाद मार्केट एनालिसिस के बाद सेकंड क्या करेंगे? रिसोर्सेज। आप लोग क्या रिसोर्सेज? How to utilize resources or arrange resources? नहीं, क्या रिसोर्सेज? व्हाट इज Cost management. रिसोर्सेज अलग चीज होगी, कॉस्ट मैनेजमेंट अलग चीज होगी। सर जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए रॉ मटेरियल्स वगैरह कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, तो सर वो ये भी अभी नेक्स्ट है। पहले इसके पहला काम क्या करेंगे? Feasibility analysis. देखो, तो मार्केट एनालिसिस आपने की तो आप कहीं ना कहीं उसमें सारा कुछ पहुंच जाएंगे। कैपिटल नहीं, अभी भी नहीं पहुंचे। मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं अभी नहीं पहुंचे। सबसे पहले आप अपनी टीम तैयार करें। कोई भी स्टार्टअप अकेला जना कभी भी कामयाब नहीं, क्योंकि एक बंदे को नॉलेज होगी जितनी, वो अकेले कभी भी आपने जब स्टार्टअप सोचनी है तो आपने ऐसे सोचना है कि उसमें एक टेक्निकल पर्सन हो, यानी कि आईटी से रिलेटेड, उसके बाद एक आपका प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से, उस तरह की इंजीनियरिंग वाला, एक फाइनेंस वाला, और हो सके अगर आपको स्टार्टअप का आइडिया आपका बहुत अच्छा है तो एक एचआर वाला जो कि लेबर को मैनेज कर सके। अगर ये 4 लोग आप मिल जाते हैं तो आपकी स्टार्टअप की कामयाबी उसी टाइम 50% हो जाती है, क्योंकि आपके पास हर एक फील्ड का एक एक्सपर्ट बनता है। हो सकता है आप सारे अभी एक ही फील्ड में काम कर रहे हो, सब एक ही फील्ड के, तो आपको अपने दोस्ती जो है उन लोगों के साथ भी रखने चाहिए जो इन अलग अलग फील्ड्स वाले हैं। एक ही फील्ड के 1 या 2 जने हो सकते हैं, बट एक ही फील्ड के सारे लोग रहेंगे तो वो स्टार्टअप को कामयाब कैसे करेंगे? उनको सारी चीजों की नॉलेज तो नहीं होगी। हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। अब वो एक्सपर्ट्स भी ऐसे ही हो कि जिन्होंने 2-3 साल काम किया हो। तो आप कोशिश करें जब अपना प्लान तैयार करें उसमें पहले अलग अलग फील्ड के लोगों को उसमें ऐड करें और उनको भी कहें कि हम सब 2 से 3 साल हमें जॉब करनी है, हमें एक वर्किंग सीखनी है। वर्किंग सीखनी क्यों कहता हूं आपको मैं कि इंडिया के अंदर हम जब काम करने जाते हैं तो यहाँ सारा कुछ जो कॉपी बुक में लिखा होता है वैसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली समझनी पड़ती है। मैं खुद जब पहली बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने बनानी थी, उसका नाम हमने दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, 16 बार रिजेक्ट हुआ। हमें 6 महीने लग गए अपना कंपनी का नाम रजिस्टर करने में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ नाम रजिस्टर करने। हुआ कैसे? वो अल्टीमेटली सिर्फ एक 5,000 रुपए दिए गए और वो काम हो गया, जो 1 दिन में हो सकता था। इसके लिए हमने 6 महीने लगाए, क्योंकि हम कॉपी बुक स्टाइल में काम कर रहे थे। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप हर जगह जाके पैसे दे दो, दैट इज नॉट द राइट वे। यू शुड नो द राइट वे, यू शुड नो द राइट वे। जब आपको राइट वे पता लग जाते हैं, अब मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको बताता हूं कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी इस तरीके से रजिस्टर हो जाएगी, नाम हो जाएगा। बट मैं जो भी पुरानी बात कर रहा हूँ, पुरानी जो इंडिया की जो कल्चर है उसकी बात कर रहा हूँ, तो पुरानी ऐसी थी, उससे हम काफी आगे आ गए हैं। पर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिकली अभी फील्ड में आके सीखने को मिलती है। हम अगर हमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं लिया, हम सीधा अपना काम करने लगे तो हम जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम जब कॉलेज से निकलते हैं, कोई काम करने जाते हैं ना, हमें लगता है हम इतने परफेक्ट है, इतना सारा कुछ हमारी इतनी नॉलेज है, इतना सारा कुछ मार्केट फिट प्रोडक्ट है हमारे पास, फिर हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? नहीं आनी चाहिए, बट आती है। तो अगर हम वो 2-3 साल में जॉब किया है तो उसके अंदर हम इस चीज से उठेंगे। चलिए, अब हमारा पहला पॉइंट हो गया मार्केट एनालिसिस, या हमने अपने ड्रीम को अपने पैशन बनाया, या हम रिसर्च में गए। ठीक है,
सेकेंड पार्ट हमारा हो गया कि हमने जॉब की। थर्ड पार्ट हो गया हमने टीम बनाई। टीम बनाने के बाद अगला काम हम क्या करेंगे? अब हमारे पास प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गया, हमारे पास टीम बन गई, अब हम क्या करेंगे? फंडिंग इज वन पार्ट। फंडिंग किसने कहा? ये बताओ कि फंडिंग कितनी चाहिए, कैसे बताओ? इसका मतलब कुछ बाकी है, फंडिंग नेक्स्ट स्टेप नहीं है। नेक्स्ट क्या हुआ? किस चीज की प्लानिंग? रॉ मटेरियल एक्युमुलेशन। रॉ मटेरियल, अगर हम रॉ मटेरियल की प्लानिंग कर लेंगे तो क्या हमें उससे फंडिंग का पता लग जाएगा कितने पैसे चाहिए? देखो मैं साथ साथ था, प्लीज। प्रोडक्ट तो हमने ढूंढ लिया, सबसे पहला काम प्रोडक्ट ही ढूंढा ना, मार्केट एनालिसिस करके प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट के फाइंडिंग, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड के लिए जो चीजें चाहिए होगी, जो इंपॉर्टेंस की पार्ट्स है, लाइक एवरीथिंग, सो उसके बेसिस पे सर मतलब कॉस्ट। आप बिल्कुल सही पहुंच गए हैं। डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। इससे नेक्स्ट जब सारे जने मिलेंगे हम बनाएंगे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा? प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आएगा कि आपको लैंड अपनी खरीदनी है या किराए पे लेनी है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। सेकंड पार्ट उसका आएगा क्या मशीनरी चाहिए हमें, फिर आएगा क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए हमें, कितने समय के लिए चाहिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल्स, ठीक है। इस तरह से करके हम, और भी कई सर्टिफिकेशन होती है किसी, तो जब हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आ गए, जितने हमने गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी जरूरतें होती हैं, जीएसटी नंबर लेना है, पैन नंबर लेना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अगर फाइनेंस के बच्चे हैं तो कुछ उनको पता होगा, नहीं है तो उनको भी ये भी सीखना पड़ेगा। जब आप कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको ये सारा कुछ आ जाएगा, क्योंकि जब आपको सैलरी मिलेगी तो पहले आपका पैन नंबर मांगा जाएगा, तो आपको पैन कार्ड पता होगा कैसे करना है हमें। ऐसे जब आप मटेरियल सेल या परचेज करने जाएंगे तो जीएसटी नंबर चाहिए, अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए। तो इस तरह से करके आपको ये सारी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी कि क्या मशीनरी चाहिए, इंडियन चाहिए, इंपोर्टेड चाहिए, नई चाहिए, पुरानी चाहिए, डाइयां क्या चाहिए, टूल्स क्या चाहिए, उसको उसके लिए जगह कितनी चाहिए, उसके लिए बिजली का कनेक्शन कितना चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, हमारी मार्केट में माल क्रेडिट पे जाएगा या कैश पे बिकेगा, वहां से वर्किंग कैपिटल निकलेगी, कितने वर्कर्स चाहिए, वर्कर की सैलरी कितनी होगी, हमारा बिजली का बिल कितना आएगा, ये सारी चीजें ऐड करेंगे तो हमारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी कि ये प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीजें ऐड की, तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट बनी जिसमें ये आया कि इतनी हमारी कॉस्ट आई। अब उसके बाद जब ये सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे तो हमें कॉस्ट वाली बात किसी की थी, अब आएगा कॉस्ट का। अब हमारी डिटेल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट निकलेगी जब ये सारी चीजें ऐड करेंगे, जब डिटेल्ड हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट निकलेगी उसके बाद हम उस पर ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन किस तरीके से करेंगे कि हमने मटेरियल बेचना कहाँ है, क्या हमने इसको एक्सपोर्ट के लिए बनाया प्रोडक्ट, हमने B2B बनाया है, B2C बनाया है या B2G बनाया है। ये टर्म्स आपको पता है B2G क्या होता है? बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2C कस्टमर और B2B ठीक है ना। तो ये इनके ऊपर बेस्ड रहेगा कि आपको अपनी कॉस्ट पे कितने परसेंट प्रॉफिट आएगा। करना चाहते जरा आप बोलते मैं झाड़ू वाला बनना चाहता हूँ, ऊपर हाथ करो। तुम्हारा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है साला, तुम डरे वाले क्यों है? मार्केट रिसर्च किसने, तुम व्हाइट शर्ट वाले ने बोला था ना। आपको पता है एक झाड़ू वाला कितना टर्नओवर है उसका इंडिया में? राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, जितने गवर्नमेंट का ऑफिस है उसमें झाड़ू कौन मारता है? एयरपोर्ट, सारी बिल्डिंग्स, मॉल्स, वहां पर एक ड्रेस देखने को मिलेगा। जब आप मॉल में जाएंगे तो वो ड्रेस देख लेना, उसके पीछे लिखा है BVG या यस BVG या BHG लिखा है। ये कौन है बंदा? पता
बताया आपको? He is the largest entrepreneur in India, Mr. Hanmantrao Gaikwad, who is the उसका टर्नओवर कुछ मेरे ख्याल से 80,000 करोड़ है। कितना? 80,000 करोड़। और काम क्या करता है? झाड़ू मारना थोड़ा रफ लगता है ना। He is a cleaning services। और दूसरा बात मैंने डायलॉग इसके लिए मारा, by the way I committed you 3 minutes। रुचि जी कितना टाइम है मेरे पास? उतना बता देना। नहीं हमेशा सीक्रेट्स। No, I want to take little more time. I want to quote some examples of my college days when I became the entrepreneur. As a student. तो ये जो हनुमंतराव गायकवाड़ है, he started his career as an engineer. जैसा आपने बताया, पहले 4 साल काम करो। He started working as a graduate engineer in Tata Motors. आप इंटरनेट पे जाइए, ये स्टोरी आपको मिलेगी। और मैं वही सुनाना चाहता हूँ जो बाजार में अवेलेबल है, क्योंकि हमारा पहला धंधा क्या है? ये रूम में कितने लोग हैं जो ईमानदारी से बोल रहा मुझे आज ये लेक्चर से कुछ सुनना है, ये सोच के आए थे, उतने लोग हाथ ऊपर करेंगे। झूठ मत बोलो, नरक में जाएंगे। सब लोग तुम झूठे हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने ना पेन है ना डायरी है। और मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये लेडी ले जाना डायरी में जाओ, इसका क्या संबंध है डायरी में लिखने का? वो तो टीचर है। आज के बाद ध्यान में रखना, कभी भी ऐसा मौका आएगा कि आपको एक डायलॉग किसी के मुंह से सुनने को मिलेगा, वो आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। खाली हाथ नहीं आना। मैं मोबाइल पे लिखेगा नोट्स। Sir, I'm so sorry. Please. I have seriously written this line. You can check. I wanted to say in the last, never ever come for any such any talk empty-handed. This is a very bad thing, students. कोई बात नहीं, मैं इधर आपको गाली देने के लिए नहीं आया है, मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ। आपको गुस्सा है, मेरा नाम रोहित पाठक है। आपको गाली देना है तो इंटरनेट पे जाके चेक कीजिए, मेरा नाम टाइप कीजिए, पहले नंबर पे फोटो मेरा आता है। खुन्नस लगाओ ना मेरे साथ, तुम्हारा नाम डाल के देखो तुम्हारा आता है क्या। खुन्नस उससे करो कि गूगल पे दिनेश पाठक का नाम क्यों आता है और मेरा क्यों नहीं आता, ना कि दिनेश पाठक वर्ड के बारे में खुन्नस रखो। तो नेक्स्ट टाइम से डायरी लेके आना, करेक्ट कर सकते हैं? यस सर। कोई जॉब खराब नहीं होता। कल मैं और एक काम करना, एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए इन्होंने जो बताया 200% सही है, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस। तालियां बजाइए। मास्टरपीस है। हमारी पहचान कैसे मैं बताता हूँ। ये हमारा जो राकेश बंदा है, हमारा सेंटर है ग्राउंड फ्लोर पे, कभी देखने के लिए आ जाना, करेक्ट है? घूम के आ जाइए, हमको देखना है करके हम दिखा देंगे। तो हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा था, मैंने बोला कि किसी को चीफ गेस्ट बना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वी सर्च, तो आपका नाम किसी ने मुझे बताया, मुझे कुछ नहीं, ये जस्ट अपोजिट ये रोड के पीछे इनका इंडस्ट्री एरिया है। तो उस दिन ये आए, मुझे लगता है इसको 2-3 साल हो गया अभी। We met just for 5-10 minutes, और उसके बाद हम जिंदगी में दोस्त बन गए। तो that 5 minutes made us to work together, करेक्ट है? उसके बाद तो मुलाकातें होती रहेंगी। And to be very honest, जब एक इंडस्ट्री टॉक का जब रुचि, डॉक्टर रुचि मैम ने जब हमको बताया, पहला नाम आपका हमारे दिमाग में आया, किसी और का क्यों नहीं आया? क्योंकि उस दिन जो हमारी मुलाकात हो गई, तो फर्स्ट मुलाकात वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगले टाइम से डायरी लेके आएंगे। वेरी गुड। और डरना छोड़ दो, तुम सारे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सपना देखो, सपना मालूम है? आपके जो रजिस्ट्रार्स हैं, रजिस्ट्रार्स आपका डेस्टिनेशन बहुत गलत है, मतलब लंबा है, डीन रजिस्ट्रार और कुछ उन्होंने बोला सपने देखो, करेक्ट है ना? बिंदास देखो। थॉमस एडिसन को कितने लोग जानते हैं? पर्सनल नहीं, वो मर गया है। कितनी बार फेल हो गया था? 1000। थॉमस एडिसन कितनी बार फेल हो गए थे? 1000 times। थॉमस एडिसन कितनी बार फेल हो गए थे? कौन से गधे ने बताया? Which professor told you? Tell me the name of the professor. Google। किताबें अच्छी तरह से पढ़ो। थॉमस एडिसन never failed. He invented 1000 ways जिससे बल्ब नहीं जलता है।
ये सत्य बात है। डरना छोड़ दो। Nobody fails. फेलियर का मतलब क्या है? Can you define failure? मैं 100 रुपए दूंगा। अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई थे क्या मेरे लेक्चर में इसमें से तो मिस हो गया। मैं पैसे बांटता हूँ कैश, मैं करोड़पति हूँ, तुम्हारा बाप क्या जा रहा है? मैं हूँ। तो थॉमस एडिसन कभी फेल नहीं होगा। फेलियर का मतलब क्या है मालूम है? नहीं, वो मतलब इंग्लिश वर्ड में मत फंसो। होप ये जिसका कुछ मीनिंग एटीट्यूड फालतू शब्द क्या एटीट्यूड कुछ सर फेलियर का मींस ये होता है कि जो एक बार मतलब की गलती करा उससे सीखेगा, इसके बाद ही गलती कुछ नहीं। फेलियर जिंदगी में होता ही नहीं है। आज के बाद ध्यान में रखना, फेलियर होता ही नहीं है। सर होता है कुछ लोगों की तो होता ही कुछ नहीं होता है। तुम एग्जाम में फेल हो गए, फेलियर मानेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट विल लर्न। तुम्हारा भी आंसर इतना ओके ठीक है। फेलियर क्या होता है मतलब लेट मी टेक मैक्सिमम 5 मिनट्स फ्रॉम हियर नाउ। आप घड़ी लगाना क्योंकि मैं वैसे 8 घंटा बात कर सकता हूँ। मुझे जल्दी जाना था बट आई थिंक आज का तो दिन गया है। ठीक कोई बात। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था आई पास बी मैकेनिकल करेक्ट है। एंड बाय द वे मैं ये भी चीज बताना चाहता हूँ कि मुझे 12th में कितने अच्छे मार्क्स मिले थे। जिनको मालूम नहीं उसके लिए मैं बता देता हूँ। मुझे 12th में कितने मार्क्स होंगे? 72 कौन है तमसीर वाला? ये उड़ जा तो आगे बाहर साले दिखा दे बेटा। वेरी गुड। मैं आखिरी में बताऊंगा, कल को बता देगा। तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। आई वांट टू गिव 2 एग्जांपल्स नाउ। मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी। मैं इंग्लिश का मारा वाला था क्योंकि मैं इंग्लिश भी मराठी में पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में। जो विलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं ना वो भी मराठी में पढ़ाते हैं। मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी। मैं सारे इंटरव्यू में फेल। और मैं मुझे वो दिन याद है टाटा मोटर कंपनी ने मेरा इंटरव्यू लिया था और वो 5 बंदे आए थे ऐसे मोटे मोटे थे और उन्होंने मुझे ग्रुप डिस्कशन करो ये डू लाइक दैट ब्रीफ अबाउट यू पेरेंट्स फैमिली। मेरे को तो पसीना आई। टाई भी लगा के गया था। मेरे को टाई बांधने को नहीं आता है, किसी से बंधवा के लिए आता। मैंने बाहर आके इतनी इज्जत मैंने उतारी। मैंने टाई खोला और कसम खाई एक दिन में टाटा मोटर को पढ़ाऊंगा। एक दिन वो दिन जल्दी आ गया। Yes, that's true. बिल्कुल डरना छोड़ दो। अभी आपको 2 एग्जांपल लेके मैं मेरा भाषण बंद करता हूँ। एंड आखिर में मुझे एक विनर के बारे में डायलॉग में मारूंगा जो सबके लिए है, वो याद करने के लिए जो डायलॉग मारना है करना। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। बाय द वे आपके घर से कितने पैसे आते हैं? आप कौन से गांव से? सर गांव मतलब घर का है मेरा मतलब जो दिल्ली वाला नहीं है ऐसा कोई बंदा है कैसे? सर उसको जवाब तो दे दो तो बच्चे को। आप तुम बोलो। सर गांव मेरा मेरठ है। अच्छा मेरठ है। यस सर। तो यहाँ तुम हॉस्टल में रहता है? नो सर। कहाँ रहता है? अगर बिलोंगिंग पूछते हैं तो मेरठ है, अदरवाइज मैं दिल्ली में रहता हूँ। मतलब दिल्ली में तुम्हारा घर है? यस। ऐसा नहीं हॉस्टल में कोई रहता है कैसे? हाँ एक बच्चे तुम बताओ हॉस्टल में रहता है कितने पैसे आते हैं घर से तुमको हर महीने के? फिक्स नहीं है मतलब चाहिए होता तो भेज देते हैं। अरे रखली तो बताना भाई। जितने चाहिए होते हैं मंगा लेता हूँ। 400-500 4-5 कितने आते हैं? मतलब मम्मी को अरे रफली बताना भाई। 5-6 वेरी गुड। मैं आपको लाइव स्टोरी सुना के 2 स्टोरी सुना के भाषण बना। मैं जब कॉलेज में था तो मेरा महीने का खर्चा बहुत था पर्सनल खर्चा बट मुझे 750 रुपए आते थे उस टाइम पे। वो भी बहुत है। अरे चुप रहे। और उस टाइम मेरा खर्चा 3500 हुआ करता था। मेरे दोस्त थे हम पार्टी करते थे पिक्चर देखते थे। नहीं बाकी जो भी है। Now I'll tell you, मेरे ओनली 2 वर्ड ध्यान में रखना। आपको डायरी नहीं है तो भूल जाओ। इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं। पहला वर्ड होता है नॉलेज और दूसरा वर्ड होता है स्किल। इसका अभ्यास करना। मैं ज्यादा भाषण नहीं करेगा आज। मैंने कुछ नॉलेज सीखा था और कुछ स्किल सीखा था।
मैं आपको खाली एक केस स्टडी बताऊंगा जिनमें राकेश छाबड़ा जी के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। आपके कंपनी में कॉलेज में फन फेयर होता है क्या? फन फेयर वगैरह? हाँ, फेस्ट होता है क्या? फेस्ट तो हमारे कॉलेज में होता था। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि मैं एक फन फेयर में कार्यक्रम करेगा जिसकी स्कीम ये रहेगी। तो मैंने आइडिया जनरेट किया था कि मुझे 12,000 रुपए कमाने हैं। कितने? 12,000 रुपए कितने दिन में? 8 दिन में। ना उस जमाने में 12,000 मतलब आज के तो 12 लाख है। लेट मी टेल यू दैट टाइम मेरा महीने का अर्निंग कम से कम 50,000 रुपए था। पर्सनली मैं रात भर काम करता था, 24/7 आपने बोला ना। मुझे फोर्ट्रॉन, कोबल, लोटस, C++ ये लैंग्वेज मैंने सीखी थी। आपके जो रिपोर्ट्स थे ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, वो मैं रात भर बनाता था कॉलेज के प्रिंटर यूज करके। वो डॉट मैट्रिक्स वाले प्रिंटर कॉलेज का, वो रिबन मेरी, वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा कॉलेज के साथ था। और जो रिपोर्ट बाजार में 2 रुपए को पेज मिलता था, मैं 1.5 रुपए में बेचता था। और जो पेपर था वो 12.5 पैसे में एक पेपर आता था। और जो इंक थी वो 1000 पेपर में चलती थी। तो मैं 1.5 रुपए में मतलब 1.5 रुपीज में बेचता था पेपर 12.5 पैसे का, और इंक का पैसा 2 पैसा। तो एक पेपर अगर मैंने प्रिंट किया तो मैं ऑलमोस्ट 100 रुपए कमाता था। और मुझे एक ही बार रिपोर्ट बनाना पड़ता था, 200 पेज इंटू 8 कॉपीज। इमेजिन करो। और ये काम मैं कुछ नहीं करता था। मैंने 4 बच्चे रखे थे। मैंने बोला मैं तुमको रिपोर्ट बना के चेक करके दूंगा, Ctrl+P, Ctrl+C, Ctrl+R जो भी करना है, खाली तू पेपर डालना, तू फाड़ना, तू सेग्रीगेट करना, तू चेक करना, सवेरे आने का पैसा मेरे पास आएगा, मैं तेरे ऐसा दे दूंगा। अभी आपके लिए क्लासिक केस स्टडी है। मुझे 12,000 रुपए कमाने हैं और मुझे फन फेयर में प्रोग्राम करना है। तो मैंने एक स्कीम निकाली, आप एक 2 रुपए का पेन खरीद लो और लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करो। जो बाजार में 2 रुपए का पेन है, यू गेट द टिकट, गेट 2 रुपीज, गेट द एक्चुअल पेन एंड इसमें डालो। अगर आपका नंबर लग गया तो पहला बख्शिश मिलेगा आपको 2 in 1 टेप रिकॉर्डर, दूसरा घड़ी, तीसरा रेमंड्स के पैंट शर्ट्स। ऐसे 25 आइटम थे और वो सब मैंने डिस्प्ले किए थे। आपको मुझे बताना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट। सोचना, एनी आइडिया? मेरा प्रॉफिट 12,000 होना चाहिए, मुझे 2 रुपए का टिकट बेचना है, 2 रुपए का मतलब 2 रुपए का पेन दिया जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, बाकी चीजें भी कहां से आएगी कोशिश करो, फिर मैं आंसर दे देता हूं। क्योंकि देखो जो करने में मजा है ना, ये चौधरी साहब ने, सॉरी छाबड़ा साहब ने जो बताया ना, इन्होंने किया है कि करके देखने से ज्यादा एक्सपीरियंस आता है। करके देखो। तो मैंने स्पॉन्सरशिप वहां से सीखा है। चलो अब जल्दी बताओ कुछ आइडिया। हाँ, तो किसी से तो पैसा लेना पड़ेगा ना मुझे। ये बोले घर वाले से ले लो, किसी से ले लो। मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। करेक्ट? Everything was marketed by me and my team. मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। ये 2 रुपए का जो पेन है ना, पेन, वो आप अगर होलसेल में लेंगे तो कितने को मिलता है? बच्चे बहुत कमजोर है। What is the manufacturing cost of a pen? अभी B2C में बताया था ना कितना। हाँ, मैं आपका पॉइंट पकड़ के चल रहा हूँ। I am giving the example। और 2 मिनट 3 मिनट बस। तो जो 2 रुपए का पेन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 9.5 पैसे होती है, बाकी मार्केटिंग कॉस्ट होती है। तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला मुझे 5 पैसे में पेन चाहिए। वो बोला बाहर निकल। मैंने कोई बात नहीं, मैं दूसरे दुकान वाले के पास जा रहा था। औरंगाबाद कॉलेज में BE मैकेनिकल के 3rd ईयर बच्चों को मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता था, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी
एंड ड्राइंग होता था जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, बट मैं ड्राइंग में प्रैक्टिकल लेता था। ओके, तो पहला तो ये सब चीजें घटा दो, प्लीज हैव नॉलेज एंड स्किल डेवलप करो। स्किल पेज यू बैक। मेरे पास भाषण करने का स्किल है, और इन बाप बच्चे ने कंसल्टेंट के बारे में 2 गालियां दी थी बीच में, वो कैटेगरी में हम आते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो हमारे पास ही आना पड़ेगा ना, कैसा कम करे करके। तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, तुम लोग जरा डरे वाले क्यों हैं? इससे कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ये लेक्चर से, करेक्ट है कि नहीं है? बिंदास खुल के जरा जियो ना, क्या टेंशन में बैठे, मत टेंशन में रहो। एक अच्छा मुकेश अंबानी को कितने लोग जानते हैं? जानते मतलब इंटरनेट से जानते हैं। वो क्या खाता है? अब तेरी क्या खाता है? अच्छा, मुकेश अंबानी के घर में बर्तन कौन से? यही तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है। लिसन केयरफुली। उसके घर में मट्टी के बर्तन है, इसके लिए मैंने बोला नॉलेज पढ़ना चालू करो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। थोड़ा नॉलेज, उसके घर में मट्टी के बर्तन है। आप जगन्नाथपुरी कोई गया है? यस सर। उधर का खाना कैसे बनता है? हाँ, उसके पीछे साइंस है। टाइम नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं अच्छा से तुमको धो के साफ करता था, मतलब मन को, लेकिन आज मूड नहीं है मेरा। तो डरना नहीं है, नॉलेज ले लो। देखो नॉलेज बहुत काम में आता है। करेक्ट है। अभी एक जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, वो इस रूम में किसी लोगों को उसका आंसर मालूम है, बट वो मत दे दे। करेक्ट है, एकदम सिंपल सवाल है, और उसका मैं थोड़ा इनडायरेक्ट आंसर दे। ज्यादा सोचना छोड़ दो, कभी कभी ना ज्यादा सोचना छोड़ दो। ये सोच के मर जाती है दुनिया। करना चालू कर दो, करना। आपने 10वीं दानिया पिक्चर देखा क्या? 10वीं दानिया सिमिलर टू दैट वर्ड देयर इज अ पिक्चर। 10 दानिया या 10वीं दानिया, हाँ एक पिक्चर है, 1 घंटे का पिक्चर है, जरूर देख लेना। उसमें क्या बताया है कि उसको मन में बहुत सारे विचार थे, वो बोल नहीं पाया, या उसको जो भी करना था वो कर नहीं पाया। फिर उसका जाने का टाइम आ गया ना ऊपर, तो वो बोलने लगे मुझे ऐसा करना था, ऐसा करना था। ये तुम्हारे अच्छा पिक्चर है। बकेट लिस्ट भी आया था दूसरा एक पिक्चर, कोई तो मराठी आया। पिक्चर भी देखा करो। तुमको हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है? चश्मा वाला, जल्दी बोलो। ये कौन है भाई? हाँ, साउथ की है? यस सर। पूरा स्टडी करो। आप उससे कभी मिले हैं? फिर छोड़ दो ना, जब मिले नहीं तो क्या पूछ रहे? टू कंक्लूड, एक लाइन मैंने इनको याद करने के लिए बोली थी, बस के ऊपर लिखी थी वो लाइन। किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है, वो पुणे में मेरे सामने बज जा रही थी, और मेरे में एक आदत है, मैं आपको आँख खोल के चलता हूँ। तुम लोग आँख खोल के चलते हैं, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम ब्रेन से चलते हैं। ब्रेन में कुछ अलग विचार है तो सामने जो चीज आ रही है दिखती नहीं है। मैं थोड़ा अलग है, मेरे सामने जो दिखता है ना वो मैं देखता हूँ। वो बस के ऊपर लिखा था, टू बी ए विनर, टू बी ए विनर, प्रिपेयर लाइक विनर। मतलब क्या है? मुझे अगर विनर बनना है तो विनर जैसा प्रिपरेशन करना है। सारा मेरे को दिमाग में बैठ गया, भाई तुम लोग विनर बनना चाहते हैं कि नहीं है? तो प्रिपरेशन वैसा है। करेक्ट है। अब आखिरी डायलॉग ऑफ द डे, 2 + 2 = 5। ये कैसा होता है? कौन बोला? ये तो उठ जा। कौन बोला? तू उठ जा, तू इधर आ जा, इधर। तुम इसको सॉल्व कर देना। Yes or no? So here is one more live example in front of you. They both are his sons, and they both have done the job first, and then only he asked them to join his company. So to become an entrepreneur, it is first thing that you should do a job. He's not just saying that, he has also followed that. So whatever people are coming here, just don't listen to them. It is to grab them, to understand them. That's why we are bringing them here.